چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرتی ہوں میں. پہلی بات تو آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا ایک فورم بنایا ہے اور اپنے اس طرح کا انیشیٹو اس طرح کا اقدام کیا ہے آپ نے، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری تھا اور وقت کی ضرورت بھی تھا. دیکھیے پہلی بات ہے، دو چار میں بالکل شروعات میں دو چار باتیں بالکل واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میرا مقالہ جو ہے گرچہ ہے ذمہ داران اور منصبداران عہدیداران مدارس ہیں ان کو چند مشوروں پر میرا وہ مشتمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بالکل واضح کر دینا چاہ رہا ہوں یہاں کے اوپر بہت ساری باتیں یہاں. ہاں، دوسری بات بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کبھی بھی ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج اگر کوئی اقدام کریں، کوئی انیشیٹو لیں گے تو اس کے اثرات 4-5 سال بعد دکھنے لگیں گے. ایسا بالکل نہیں سوچنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم جو بھی تعلیم کو لے کے جو بھی اقدامات کریں گے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے نتائج جو ہوتے ہیں، یہ بہت لمبے عرصے کے بعد دکھنے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بسا اوقات 30-35 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. عموماً ہمارے پہ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم نے آج کچھ کیا ہے، اس کو 2 سال بعد اس کے اثرات دکھنے شروع ہو جائیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میرا مقالہ جو ہے وہ دو چیزوں پر دو اجزاء پر مشتمل ہے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو مطلب نظریہ تعلیم ہے وہ کیا ہے وہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ چند مشورے ہم دیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ ہماری شروعات اقرا سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پڑھنے سے ہماری شروعات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو آگے جو آگے جو آیت بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ پڑھنا کیسے ہے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کس رب کے نام سے پڑھنا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یا جس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. تو مثلا ابھی جب میں نے آج کل فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے تھوڑا بہت، تو اس فلسفے کے اندر مجھے ایک چیز نظر آئی ہے. میں ایک دن ایک اسکالر کو سن رہا تھا، ایک فلسفی کو سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں تعلیم کا ڈویژن جو شروع ہوا ہے یہ 200 سالوں میں شروع ہوا، جس کی جانب بھی ظفر سریش والا نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اسلام، پہلی بات تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کبھی بھی دین اور دنیا کے بیچ میں علم کو لے کر کے کوئی تفریق نہیں کرتا ہے. اس کے بالکل تصور واضح ہے. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ دین کی اصلاً تیاری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دنیا میں کیسے ہم رہ رہے ہیں، یہی چل کے آگے چل کر کے ہم کو اس کا وہ ہونا ہے، اس کا ہم کو جواب دینا ہے ہم کو ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. ہاں، تو جدید، جس کو ہم جدید کہہ رہے ہیں، جس کو ہم سیکولر، جس کو ہم ماڈرن کہہ رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اسلام کا تصور نظام پوری طرح سے رائج تھا. اس نظام تعلیم کی جو مثلث تھا، اس کا جو ٹرائنگولر تھا، وہ 3 طرح کی چیزوں سے بنتا تھا. اس کے سب سے اوپر خدا تھا. ٹھیک ہے، اس کے ایک کونے پر کائنات تھی اور دوسرے کونے پر انسان ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو انسان اور کائنات کا جو تصور تھا یہ ہمارا خدا کے ذریعے طے ہوتا تھا. مطلب جس کو ہم بہت ہی سادہ الفاظ میں معرفت الہی کہہ سکتے ہیں کہ معرفت الہی کے ذریعے ہمارا تصور کائنات اور تصور انسان ہمارا طے ہوتا تھا. گویا کائنات میں یا دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی کر رہے ہیں، بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں ہم کو اس کو لے کر کے ہم کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور یہ معرفت الہی کا تصور اس قدر وسیع ہوا کرتا تھا، اس قدر یہ محیط الکل ہوا کرتا تھا کہ اس سے ہم کسی بھی طرح سے ہم بچ نہیں سکتے تھے. ہم ٹھیک ہے، ہم چاہے حاضر میں ہو، چاہے غائب میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے وہاں ہو، بہرحال ہم کسی بھی طرح کے غلط کام کو ہم کر نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تصور طے کرتا تھا. وہ تصور تو اب ہمارے یہاں تصور رہ گیا ہے، لیکن تصور مجھے لگتا ہے کہ بہت دھندلا یا بہت چھچلا ہو کر کے رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، بسا اوقات ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھا لیتے چلیے کوئی بات نہیں ہے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تصور اگر ہمارے اندر زیادہ گہرائی سے جاگزین اگر رہے گا تو کہیں نہ کہیں مطلب ہم کسی بھی طرح کے ہم مطلب منفی کام سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام کا تصور تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم جو معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے وہ جہل ہے اور وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے. اس کے علاوہ عہد وسطیٰ کے حوالے سے بھی یہاں کافی باتیں ہو گئی ہیں. وہ عہد وسطیٰ کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اسلامی انقلاب جب بھی آئے گا وہ کسی عسکری یا دفاعی قوت کے ذریعے نہیں آئے گا، وہ تعلیم کے ذریعے آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کا جو ابتدائی جو انقلاب آیا تھا وہ بھی تعلیم کے ذریعے آیا تھا. عہد وسطیٰ کا جو بھی انقلاب آیا تھا وہ تعلیم کے ذریعے ہی آیا تھا. ٹھیک ہے، مسلمان اپنے نظریہ تعلیم لے کر کے آئے تھے، اس پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے تھے.
अभी हाल फिलहाल एक किताब अभी आई है, तमीम अंसारी हैं, अफगानिस्तान और अमरीकी मौरख हैं, जिनकी किताब अभी आई है, डेस्टिनी डिसरप्टेड वर्ल्ड हिस्ट्री थ्रू इस्लामिक लेंसेज, ठीक है, जिसका उर्दू तर्जुमा अभी आ चुका है, काफिला क्यों लूटा। काफिला क्यों लूटा का जब मैं मुकदमा पढ़ा था जकी किरमानी साहब का लिखा हुआ, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो, हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी। खुरब साहब, अब आवाज आ रही ना मेरी? हेलो। जी जी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। चलिए, ठीक ठीक, ओके, शुक्रिया। तो उसके मुकदमे के अंदर जकी किरमानी साहब लिखते हैं कि इस्लाम जब पूरी दुनिया के अंदर एक्सपैंड होना शुरू हुआ, जब फैलना शुरू हुआ, तो ये हमारा छठी सदी ईसवी से लेकर के ये हमारा 14वीं 15वीं सदी तक आता है। इन सदियों के अंदर कोई सदी ऐसी नहीं थी पूरी दुनिया जिस वक्त कोई मुस्लिम साइंसदान, कोई मुस्लिम फलसफी, या कोई मुस्लिम दानिश्वर, या कोई मुस्लिम फिजिशियन, या कोई मुस्लिम सर्जन पूरी दुनिया के जहनों को मुतासिर नहीं कर रहा था। आप इन पूरी सदियों का जायजा उठा करके देख लिया, हर सदी में कोई ना कोई ऐसा एक मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब हमारे ऊपर जब मगरबी साम्राज्य का, मगरबी इस्तेमारियत का जब दबदबा या उसका कब्जा बढ़ना शुरू हुआ, तो हमको नया नजरिया तालीम यही दिया गया कि ये इल्म जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। ये एक दिन का इल्म है, एक दुनिया का इल्म है, ऐसा नहीं है। असल अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत ही बारीक चीजें कारफरमा थी इसके पीछे, जो कि हमने कभी गौर नहीं किया। हमने हुआ ये था कि अहद वस्ता के अंदर जब मगरबी जब साइंसदान जब दुनिया को नए नए तरीके से, खासतौर से कौनियात और क्या कहते हैं कायनात के इल्म को लेकर के जब एक्सप्लोर कर रहे थे चीजें, तो बहुत सारी चीजें वो बाइबल यानी इंजील से टकरा रही थी वो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मजहब जो है वो एक सुपरस्टिशन है, अवाम परस्ती है, ठीक है, इसका कोई हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं था। गालिबन यही वजह है कि 14 साढ़े 14 सदियां गुजरने के बावजूद अभी भी कोई एक ऐसी चीज हम साबित नहीं कर पाए हैं साइंस के अंदर जो कुरान से टकरा रही हो, कहीं नहीं साबित कर पाए हैं। तो गोया कि हमारा जो मतलब हमारा जो वही का तस्वुर था पूरी तरह से हक के ऊपर था। उसके अंदर कहीं से भी मतलब, या उसके अंदर जो भी रहनुमाई थी वो एक उलूही या खुदाई रहनुमाई थी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये चीजें अहद वस्ता के अंदर ईसाई से टकरा रही थी, ईसाई जो साइंसदान थे उनसे टकरा रही थी, यही चीजें हिंदुस्तान के अंदर भी हो रही थी, यही चीजें कन्फ्यूजनिज्म की आड़ में चाइना के अंदर भी हो रही थी। क्योंकि हर मजहब या हर मजहबी किताब मुहर्रफ हो चुकी थी, इंटरपोलेटेड हो चुकी थी, बिल्कुल, ठीक है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो तहरीफ है वो सबसे बड़ा जुर्म हमारे यहाँ करार पाया, और यही वजह है कि हमारे यहाँ वो आयत भी मौजूद है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसे नाजिल किया, हम हर कीमत पर इसकी हिफाजत करेंगे हम इसकी, ठीक है। गालिबन यही वजह है कि दुनिया की बाकी जो सहाइफ थे वो मुहर्रफ हो गए और कुरान कभी मुहर्रफ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये भी है कि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, वो तारीख का एक बड़ा शॉकिंग फैक्ट देखे। आमतौर पर हमें तारीख में ये बताया जाता है कि यूरोप क्या कहते हैं, यूरोप जो है छठी से लेकर के 13वीं सदी तक, 12वीं 13वीं सदी तक उसका वो उसकी तारीख सदियां, उसकी डार्क एजेस है। ये पूरी तरह से गलत है। ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत लोग इस फैक्ट के ऊपर चौंकेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये ऐसा नहीं है। जिन सदियों को हम यूरोप की तारीख सदियां कहते हैं वो असल यूरोप की सबसे उजली सदियां, सबसे रोशन सदियां थी। वजह यह है कि जिन सदियों को पूरी दुनिया के अंदर डार्क एजेस कह करके प्रमोट किया गया, असल उसी दौर में यहूदी और मसीही उलमा जो थे वो अंदलुस के यानी अंदलुस के मदारिस के अंदर बैठ करके अरबी मतून को पढ़ रहे थे, ठीक है। और उन अरबी मतून के अंदर अरब फलसफी जिस तरह से यूनान के फलसफियों को या यूनान का जो निज़ाम इल्म था उसको जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे वो उससे रोशनी हासिल कर रहे थे। तो निशत सानिया जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम रोशन ख्याली कहते हैं, जिसे हम लिबरलिज्म का जिसे हम अहद कहते हैं, वो असलन उसी का एक इंतहाई मैनिफेस्टेशन था, उसका इंतहाई मजहर था, ठीक है। गालिबन यही वजह है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बार बार जगह जगह हमें कहा गया, हमें क्या वो गौर फिक्र नहीं करते हैं, क्या वो शऊर नहीं रखते हैं, क्या वो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, या इसके अलावा या उलुल अब्सार या उलुल अलबाब भी बार बार कहा गया, अक्ल वालों, नजर वालों, फसीरु फिल जमीन में चल फिर कर देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान हमारी रहनुमाई का बिल्कुल एक तरह से सुप्रीम मतलब सुप्रीम गाइडेंस का हमारा स्क्रिप्चर हमारा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीजों को मतलब हमने उसे पढ़ा, लेकिन हमने सिर्फ उसे शरीयत साजी की तरह पढ़ा। शरीयत साजी उसका एक पहलू है, उसके अलावा उसके बेशुमार पहलू उसके हैं, ठीक है। उसके अंदर साइंस है, फलसफा है, ठीक है, कौनियात उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर नहीं है। तो हम इस रविश को पूरी तरह से हम भूल चुके हैं। उसके बाद जो हमने नई बाइनरी बनाई, उस नई बाइनरी के अंदर एक तरफ जदीद इल्म है जिसे हम जदीद कह रहे हैं। इस्लाम तो अपने आप में जदीद है, वो पहले भी जदीद था, वो आज भी जदीद, वो जदीद है, वो कल भी जदीद रहेगा, क्योंकि उसके पास जो निज़ाम है वो एक तरफ से इमोर्टल निज़ाम है। उसके पास वो रहती दुनिया तक के लिए रहने वाला है, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं होने वाला है। तो ये हमने बनाया। और इस
पूरी और इस पूरे निज़ाम का जो एक्सप्लॉइटेशन किया गया वो 19 और 20 सेंचुरी के अंदर इस तरह से किया गया। फिर हमारे जो मुस्लिम जो दानिशवर थे उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया। उसके हमारे यहाँ हम उसको हम उसका हम तालीम के सियाक में उसका एक मजहर हम एमयू की शक्ल में देखते हैं और दूसरा मजहर हम दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में देखते हैं। मतलब यहाँ से हमने पूरी तरह से दो चीज़ों को अलग अलग कर लिया। अब इन पौने 200 सालों के अंदर हमने जो कुछ पैदा किए हैं। आतिफ साहब थोड़ा वक्त की तंगदमानी का शिकवा है, मुख्तसर अच्छा खुलासा ठीक है, करें। बहरहाल ठीक है। तो बहरहाल मशवरा यही है कि अभी हाल फिलहाल एक नया मजमून शाया भी हुआ है अयाज वानी साहब का और रशीद किदवई साहब का। तो उसमें जो मशवरे दिए गए वही मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने मदारिस का जो निज़ाम तालीम है वो हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमें करना हमें, ठीक है। हमें एक एजुकेशन की हमको एक म्यार साजी हमें करनी है कि ये चीज़ें हर जगह पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन हमारे रहेंगी। उसके अलावा बहुत सालों पहले यूपीए गवर्नमेंट के अंदर सीएमबी का एक मशवरा आ चुका है, सेंट्रल मदरसा बोर्ड का एक मशवरा आ चुका है कि मतलब जितने मदारस होंगे सीबीएसई की तर्ज पर या आईसीएसई की तर्ज पर, जिस तरह सेंट्रलाइज स्कूल है उस तरह से एक सेंट्रल मदरसा बोर्ड सिस्टम भी हम बना लें हम, ठीक है। मतलब सारी मार्कशीट जितनी मदारिस की मार्कशीट है वो वहीं से रिकग्नाइज होंगे, ठीक है। बाकी आपको आजादाना तौर पर फ्रीलांस जो कुछ भी आपको पढ़ाना है वो पढ़ाइए। और दूसरी बात ये कि हमको मदारिस के अंदर जितनी भी जो ज़कात का निज़ाम है, ज़कात के निज़ाम को पहली बात तो हम ठीक के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और मदारिस के अंदर जो भी चंदा आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है कम से कम उसका चेक एंड बैलेंस, उसका ऑडिट होना चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और इसको हम बहुत सारी चीज़ों पे हम खर्च कर सकते हैं। मसलन हम असातिज़ा को हम अच्छा मेहनताना दे सकते हैं, हमें असातिज़ा की हम जो टीचिंग क्वालिटी उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनआईयूएस का मशवरा यहाँ आ चुका है, एनआईयूएस का मशवरा भी उसको उस पर भी गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो अरबिक पर्शियन बोर्ड के थ्रू जो हम लेकर के हम आ रहे हैं चीज़ें, हम उससे अच्छा है कि हम एनआईयूएस के थ्रू लेके आए जिसके अंदर। अच्छा, एनआईयूएस की खास बात और जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है वो ये है कि एनआईएस का जो सिलेबस, जो पहले का सिलेबस है जो मैं इससे पहले देख रहा था, वो बड़ा रिच सिलेबस है वो, ठीक है, उसका कंटेंट भी बड़ा रिच है। तो एनआईएस मतलब एक तरह से आपको कंटेंट के साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड आपको करता है वो, ठीक है। तो उसका भी हो सकता है। तो यही दो चार मशवरे हैं जो मैं जिम्मेदाराना मदरसा को देना चाहूंगा। बाकी तो बातें यहाँ पर हो ही चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ साहब, आतिफ निसार नजमी साहब। और ये थे हमारे रिसर्च स्कॉलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तंगदामानी ये वक्त